सो गाइस फ्रेंड आ चुका है। अब हम लोग जाएंगे वीडियो के लिए, ब्लॉग के लिए। वैसे आपको पता चल ही जाएगा किसका ब्लॉग है क्या है, तो इतना सरप्राइजिंग नहीं रहेगा ये, बट हाँ ब्लॉग बन जाएगा ये लोग। So now we are going to make our vlog. So we are going for our vlog. We are at Royal Enfield showroom. We are entering from the back side. Let's see what happened. This is Cam 4. This is Royal Enfield. And oops, slippery है थोड़ा. So देखते हैं किधर मिलो क्या. हाँ ले ली भैया. So right now we are in the showroom. So welcome here. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. So here's the showroom. We are reviewing about these two bikes right now. Here's the manager of this showroom, Miss Khushbu. Hi. So it's really nice to meet you, ma'am. Thank you. Thank you at allowing us to viewing the two beasts here. And there are many beasts I can see, but the two are we are viewing. And thank you for that allowing. Thank you, ma'am. Here's the new Himalayan Scrambler. Actually, I don't know about this bike very much. My friend knows about. Harsh, come here, and he will tell you about this. Whenever we think to buy a bike, several conditions applies for every person. Someone more gets a more power in a bike. Someone wants to be a better mileage in a bike. Someone wants to be a better look in design. So the Himalayan, the Royal Enfield introduced a new bike, the Scram Himalayan 411, which makes a better touring machine. So let's talk about the features, looks and design. So start with this bike with a better review. So let's get started. So the first question comes in our mind, what makes this bike different with Himalayan 411? What is the difference between a Scram 411 or a Himalayan 411? When we think the name by this bike is the Himalayan Scram 411. The thing is the Himalayan is 50% and the bike is made in the term of Scrambler bike. It has a build with a new design of the look with the Scrambler bike. So let's take it bike with a new built design and talk about first tires. So let's talk about the front tire. The size of the tire is 100 by 90 equals 90. It means it was a smaller 5 mm than Himalayan, which makes the ground clearance of the bike less than 10 cm. The Himalayan has a ground clearance I think of 210 and the bike has I think 200 mm ground clearance. Let's talk about the rear tire first. Tire size is 119 equals to 70. The tire of Himalayan and the Scram Himalayan was same as I thought. The difference is the front tire, which makes the ground clearance of this bike 10 mm more less than Himalayan. But they do not make a big difference between the Himalayan. 10 mm is just right. It became an off-roading machine and a touring machine. Oh. The suspension of this bike is lower than Himalayan as I thought. It's about 190 mm and the Himalayan I thought is about 210 mm. Okay. So this makes a difference of also ground clearance about 5 mm. And when I talk about the rear suspension, it's about 170 mm of size. But though this suspension is from the motorcycle bikes, we don't forget about the engine, which makes a big difference between. So let's talk about the engine. The engine is the single
air-cooled 411cc with a power of 32 Nm of torque with 4,500 RPM, and the power is about 24.6 up to about 6,500 power. This makes a big speed in this gearbox. And the gearbox is about 5 manual transaction. It's maybe have 5 gearbox. So when it's come to the bike of touring, the 5th gear makes a big machine of the game. When it's come to a touring bike, the pillion seat comfort is also make a big difference. The seat height of Himalayan Scram 411 is about 795 mm, less than 5 mm of Himalayan. The Himalayan has a seat height of 800 mm. So the Himalayan, there's also a big difference that Himalayan is too light engine. It's a too light seat height, and this is a single seat height. So in the time of the riding a bike, it makes a good inner comfort. So let's talk about the instrument cluster. Let's start the bike. Okay, the instrument cluster tells that it is same as a Meteor or Himalayan. The Meteor or Royal Enfield. It is the same cluster as Meteor, but the Himalayan instrument cluster is makes a big difference. The Himalayan instrument cluster has give better information that this bike. The big difference makes this bike is it have as a lack of a switchable ABS. मतलब इस बाइक में ABS को आप स्विच कर ही नहीं सकते किसी तरह से, हमें अलग से सीट के अंदर जगह खोल के ABS को ऑन करना पड़ेगा. और अब आप देख सकते हो ऑडोमीटर में यहाँ पे ट्रिप ABF है, और यहाँ पे गियर बॉक्स है और गियर चेंज इंडिकेटर है. द स्पीड मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप एक और टाइम चेंजिंग और कंपास लगा सकते हो. यहाँ पे इट्स बिकम हाँ, यू कैन बाय द बाइक दिस इंस्ट्रूमेंटेशन इन दिस रूम ऑल्सो. Okay, just talk about his. It's just hard as I thought. The clutcher is just hard, and this is the low beam, high beam, hazard, indicator signs, horn, the kill switch, and it's also an hazard. Okay. As I thought, it's a good. So let's talk about. Okay, let's start the bike and see the sound of this roar bike. This is loud. You should buy this bike or not? Is this bike a good touring bike? Is the bike kills the Himalayan? Is the bike is a good daily life bike? So I think if you are taller, the bike. If I talk about this bike, this is just smaller than the size of a Himalayan. So if you are just a short rider and want a daily uses bike, I think this makes a big comfortable bike for you. And if you want to be a big off-roading king or wants to go to a touring supports or touring like Ladakh, then you should go to Himalayan 411 as I thought. So I just want to thanks to Mr. Karan Singh Chauhan, और वो बताएंगे कि आप आपको अगर यहाँ टेस्ट ड्राइव लेनी है तो आप क्या प्रोसीजर है यहाँ का. टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं बाइक का. जी हाँ. और कब आ सकते हैं आप इसमें, मतलब फ्री टाइम हो जब यहाँ पे आया है? जब आपको टाइम मिले तब आप यहाँ आ सकते हैं शोरूम पर. So the gloves are the red, and here's come the red Ferrari, the new Interceptor 650, the king of the KP racer and the king of the touring segment. The sound of the bike is very hard as I thought. तो बात करते हैं इस बाइक के स्पेक्स के बारे में, इसके बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन के बारे में, इसके साउंड के बारे में, इसके एग्रोनॉमिक्स के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंजन जो सबसे बेस्ट चीज़ है, 650 सीसी का एयर कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर है इसमें. जब बात आती है पैरेलल ट्विन की तो साउंड का कोई जवाब नहीं होता. और कंपनी दावा करती है कि इसकी टॉप स्पीड है आई थिंक अबाउट 170. सो बट मेरा एक फ्रेंड है, मतलब भैया का फ्रेंड है, उसने इसे 174 तक टच कराया, और मतलब स्पीड तो लाजवाब ही है इसका. और अभी कुछ दिन पहले जब हम राइड पे गए थे तब एक बंदे ने फ्लाई बाय भी दिया था इंटरसेप्टर का, और वो क्या ज़बरदस्त फ्लाई बाय था. तो अब बात करते हैं पहले इसके बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में. तो सबसे पहले कुछ शॉर्ट्स देखो इस बाइक के. The first thing, let's talk about the टायर साइज. दोनों के टायर सेम है 18-18 इंच के, और जो सस्पेंशन साइज इसका है 220 mm.
जिसकी वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस बन रहा है अपने 174 mm का। और 174 mm बहुत अच्छी है, मतलब अगर सिटी राइड्स हो और आप थोड़ी बहुत लॉन्ग ट्यूरिंग के सेगमेंट में जाओ तो आपको 174 मेरे हिसाब से बेस्ट सेगमेंट है। मतलब आप बढ़िया से आराम से कर सकते हो, लद्दाख साइड जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? निंजा जा रही थी कि नहीं जा सकती यार। तो अब इसकी बात करते हैं इसका टैंक लीटर की साइज़ की। इसमें टैंक लीटर आ रहा है अपने 12.5 लीटर का, और इसकी फ्यूल इकोनॉमी है 27 km की। तो 12.5 लीटर मतलब एक फ्यूल टैंक में आप करो तो 250 किलोमीटर चल सकती है एक फुल टैंक में। और सबसे बेस्ट चीज़ जिसमें आती है वो जिसका पैरेलल ट्विन स्वेलैंडर। साउंड तो ज़बरदस्त है इस बाइक का। लेट्स टॉक अबाउट द सीट साइड। टिपिकल इंडियन स्टाइल, बिल्कुल टिपिकल इंडियन स्टाइल। और इसकी सीट साइज है 804 mm की। अच्छी अगर मतलब दो मतलब अगर आप फीलिंग तो ओ काफ़ी वेट है, काफ़ी ज़्यादा वेट है। मान लीजिए 36 किलो का वेट है। आई थिंक 198 किलोग्राम का लगभग होगा इसका वेट। और कूल है, मतलब प्लस प्लेट भी काफ़ी तरह आरामदायक है। और लेट्स टॉक अबाउट द इंटरसेप्टर प्लस सॉरी व्हाट इज इट मीन्स देन स्टूपिड क्लस्टर। ओह लेट्स एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गॉड अ लुक यार, सीरियसली इधर पेट्रोल साइज तो कमी 44। और इस साइड में आपको मिल रहा है ऑडोमीटर, द गेन इंडिकेटर, द आरपीएम साइज। आरपीएम की बात करें तो ये प्रोड्यूस कर रही है द पावर ऑफ। ओके, अब हम बात करते हैं इसके पावर के बारे में। तो इसका है PSP 47.65 का इसका हॉर्स पावर है, जो प्रोड्यूस करता है अपने 7500 का आरपीएम। और अगर हम टॉक की बात करें तो टॉक है 52 mm ना, 52 mm एंड पावर कितनी थी? ओके, तो अगर आरपीएम की हम काउंट करें तो 4700 के लगभग इसकी आती है आरपीएम से। वो अपनी हॉर्स पावर होगी। सो अब मेन बात करते हैं इसके साउंड के बारे में। हाँ दिल आगे इसके साउंड में तो अब इसका ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं कि ये बाइक की लेनी चाहिए, किस टाइप की ये टिपिकल बाइक है। तो एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि एक ऑफ रोडिंग सेगमेंट में ट्यूरिंग स्पोर्ट्स बाइक अंडर 650 cc, तो आई थिंक द इंटरसेप्टर 650 इज अ बेटर चॉइस फॉर ऑल द अदर बाइक्स एंड इट्स कम फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड। और रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की अलग ही बात होती है। अगर आप बात करोगे पावर की तो इसकी बात की अलग ही है। अगर आप बात करो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की, ये तो नंबर 1 बन चुकी है। और जो मैं उस दिन मैंने फ्लाई बाय देखा था उसके बाद तो मैं तो रॉयल एनफील्ड का दीवाना ही हो चुका था। और आप देख सकते हो अगर एसेसरीज लेना चाहते हो तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जरूर आए। और अगर बाइक के बारे में आपको देखना है तो प्लीज़ कम टू दिस रॉयल एनफील्ड शोरूम ऑफ भिलवाड़ा। काफ़ी ज़बरदस्त का कोई मुकाबला नहीं। तो आपने कभी इसे कैसे ली? बिल्कुल सर, एक बार मैंने ली थी, मैं बैठा था, मैंने भैया के साथ बैठा था, बहुत पावरफुल गाड़ी थी। ऐसा लग रहा है कि रॉकेट टिटी बन रही है ना, बहुत सही बात है। मतलब इसके जो पैरेलल ट्विन सिलेंडर से आपने खुद नहीं दिखी क्या आवाज़ चली तो ऐसा रहा। तो खुद ने अभी आवाज़ सुनी भाई हिलिया में। हाँ भैया मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मतलब मैंने भिलवाड़ा बहुत शोरूम देखे बट रॉयल एनफील्ड का फैसिलिटीज है ना बहुत बेटर है, सीरियसली बेटर है। सर एक बार इस रॉयल एनफील्ड का हम घुस गए बिल्कुल, अभी माइंड ही यही है सारा, वो मेरा माइंड पूरा यही है। मैं सोचा यार लोगों को डोमिनर खरीदनी थी, लोग चेंज हो रहे हैं कि स्क्रैम खरीदनी है हमें। मेरे को पता है एसीपी राइड में KTM क्यों ली। आप रॉयल एनफील्ड की तो बात ही अलग है सर। सर सीरियसली मतलब एक नाम होता है, एक ब्रांड होता है ना, रॉयल एनफील्ड ब्रांड बन चुका है सीरियसली। और यार सही में भैया का आपका तो बहुत अच्छा है यार, तो ज्ञान का भंडार बन चुका है। मतलब रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड सारी एसेसरीज है, सारी हेलमेट, जैकेट, बैग्स, A to Z एसेसरीज है, सिवाय गोप्रो को छोड़ के। सिवाय गोप्रो भी मान बोलो आप, गोप्रो मान और सीरियसली मजा आ गया। तो ये अब आप बिल्कुल आपको 100% का भिलवाड़ा के हो या आसपास में कहीं हो तो एक बार भिलवाड़ा के रॉयल एनफील्ड को जरूर चेकआउट करो। सीरियसली बिल्कुल चेकआउट करना ही है आपको। और नाम क्या? सोनी ऑटोमोबाइल्स। एक्चुअली 2 है ना, बट सोनी ऑटोमोबाइल्स ही आना है। वाह मुझे उसका नहीं पता। सो एंडिंग करते हैं वीडियो की साइनिंग ऑफ इंडिग राइडर्स। ओके सर, बाय।